آج ہم انسانی تعلقات اور اثر و رسوخ کے ایک بہت ہی اہم پہلو پر بات کر رہے ہیں، ایک ایسا پہلو جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ڈیل کارنیگی کی مشہور زمانہ کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل کے کچھ حصے ہیں، اور ہم ان کی روشنی میں ایک خاص اصول کا آپ کہہ لیں گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ بالکل، اور یہ وہ اصول ہے جو سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا اور اس کی نفسیات کو سمجھنا یہ واقعی بہت فرق ڈال سکتا ہے۔ کیا اصول ہے وہ؟ اصول یہ ہے، دوسرے شخص کو یہ محسوس ہونے دیں کہ خیال اس کا یا اس کی ہے۔ خیال اس کا ہے۔ جی، تو آج کی گفتگو کا مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ یہ اصول کیا ہے، بلکہ یہ کھوجنا ہے کہ یہ کام کیوں کرتا ہے اصل میں، اور اسے مختلف حالات میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، یعنی یہ صرف کوئی ٹپ نہیں بلکہ گہری حکمت عملی ہے نا، جو لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات کو بہتر بنا سکتی ہے۔ یقیناً۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے جب ہم کسی خیال کو اپنا سمجھتے ہیں؟ مطلب کیوں ہم اس کے لیے زیادہ پرعزم ہو جاتے ہیں؟ یہ سمجھنا تو بہت لوگوں کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس کی جڑیں انسانی نفسیات میں کافی گہری ہیں۔ ہم فطرتاً خود مختاری پسند کرتے ہیں۔ صحیح۔ جب کوئی خیال باہر سے ہم پر کیا کہتے ہیں مسلط کیا جاتا ہے تو ایک لاشعوری سی مزاحمت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب ہمیں لگتا ہے کہ خیال ہمارا اپنا ہے، ہماری اپنی دریافت ہے، تو وہ ہماری انا کا، ہماری شناخت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اچھا۔ ہم اس کی ملکیت محسوس کرتے ہیں، اور جس چیز کی ہم ملکیت محسوس کرتے ہیں، ظاہر ہے اس کا دفاع کرنے اور اسے کامیاب بنانے کے لیے زیادہ تیار ہوتے ہیں۔ اسے آپ نفسیات میں آئیڈیا اونرشپ بائس بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ہم اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ بات تو بڑی دلچسپ ہے۔ یعنی یہ صرف یہ نہیں کہ ہم دوسروں کے خیالات مسترد کرتے ہیں، بلکہ ہم اپنے خیالات کو زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ہیں۔ بالکل۔ کارنیگی بھی یہی سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، کیا آپ خود ان خیالات پر زیادہ یقین نہیں رکھتے جو آپ خود دریافت کرتے ہیں، بنسبت ان کے جو آپ کو بس چاندی کی تشتری میں سجا کر پیش کر دیے جائیں؟ صحیح۔ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر اپنی رائے دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کرنا تو غلط حکمت عملی ہوئی نا؟ یقیناً، یہ ایک بنیادی غلطی ہے جو ہم اکثر کرتے ہیں، بہت عام ہے۔ ہم اپنے دلائل دیتے ہیں، قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ منطق ہی کافی ہوگی، لیکن انسان صرف منطق سے تو نہیں چلتے۔ تجویز دینا، سوالات پوچھنا اور دوسرے شخص کو خود نتیجے تک پہنچنے میں مدد دینا، یہ کہیں زیادہ مؤثر حکمت عملی ہے۔ یہ سمجھیں کہ زبردستی دھکیلنے کے بجائے آہستہ سے اپنی طرف کھینچنے جیسا ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے ہمارے پاس؟ جی ہاں، ایک بہت اچھی مثال ہے فلیڈیلفیا کے ایڈولف سیلٹس کی۔ وہ ایک گاڑیوں کے شو روم میں سیلز مینیجر تھے اور اپنی ٹیم کی کارکردگی سے سخت پریشان تھے۔ اچھا، کیا مسئلہ تھا ٹیم کے ساتھ؟ ٹیم میں مایوسی پھیلی ہوئی تھی، کام کرنے کا جوش و جذبہ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ اس صورتحال کو کیسے بدلیں۔ عام طور پر تو مینیجر سختی کرتے ہیں یا کوئی نئی پالیسی لے آتے ہیں۔ ہاں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کوئی سخت پالیسی نافذ کرنے یا کیا کہتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بجائے ایک بالکل مختلف راستہ چنا۔ انہوں نے ایک سیلز میٹنگ بلائی۔ ٹھیک ہے۔ اور اپنی ٹیم سے ایک بڑا غیر معمولی سوال پوچھا۔ انہوں نے پوچھا، آپ لوگ مجھ سے بحیثیت مینیجر کیا توقعات رکھتے ہیں؟ اوہ، یہ تو واقعی الٹی بات ہے۔ عام طور پر تو مینیجر اپنی توقعات بتاتا ہے نا؟ تو ٹیم نے کیا کہا؟ ٹیم پہلے تو شاید تھوڑا ہچکچائی ہو، لیکن پھر انہوں نے کھل کر بات کرنا شروع کر دی۔ وہ بتاتے گئے کہ انہیں کیا چاہیے، ایمانداری، قابلیت، مدد، منصفانہ رویہ وغیرہ وغیرہ۔ اور سلیٹس ان کی تمام باتیں، تمام توقعات بلیک بورڈ پر لکھتے گئے۔ جب وہ سب اپنی بات کہہ چکے تو سیلٹس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھ سے جو توقع رکھتے ہیں میں وہ سب پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب بدلے میں مجھے آپ لوگوں سے کیا توقع رکھنے کا حق ہے؟ واہ، کیا کمال کا طریقہ ہے! یعنی پہلے ان کی سنی، ان کی ضروریات کو سمجھا، تسلیم کیا اور پھر اپنی بات رکھی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا پھر؟ نتیجہ فوراً سامنے آیا اور بہت پرجوش انداز میں۔ ٹیم نے خود ہی وہ سارے معیارات پیش کر دیے جن کی سیلٹس کو خواہش تھی: وفاداری، ایمانداری، پہل قدمی، مثبت رویہ، ٹیم ورک اور روزانہ 8 گھنٹے پوری لگن سے کام کرنا۔ زبردست!
सेल्टिस बताते हैं कि उस मीटिंग के बाद जैसे माहौल ही बदल गया। टीम में एक नया जोश व जज्बा आ गया। एक सेल्स पर्सन ने तो यहां तक कहा कि वो दिन में 14 घंटे काम करेगा। 14 घंटे? जी, और सबसे अहम बात कि सेल्स में नुमाया इजाफा हुआ। सेल्टिस ने इसे इखलाकी सौदा कहा था, है ना? ये बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। मतलब ये सिर्फ पूछना नहीं था, बल्कि उन्होंने खुद भी उनकी तवक्कुआत पूरी करने का वादा किया और फिर निभाया भी। बिल्कुल, ये दो तरफा अमल था। इसी से एतमाद और अज़्म की फिजा पैदा हुई। ये सिर्फ मशवरा नहीं था, ये एक तरह की शराकतदारी थी। सही। सेरेट्स ने खुद कहा कि उनकी ख्वाहिशात के बारे में उनसे मशवरा करना ही वो ज़रूरी हौसला अफजाई थी। वो शॉट ऑन दी आर्म था जिसकी उन्हें अशद ज़रूरत थी। उससे उन्हें सूरत हाल की मिल्कियत का एहसास हुआ, और जब मिल्कियत का एहसास होता है तो जिम्मेदारी और आज़म वो खुद ब खुद आ जाते हैं। ये बुनियादी नुक्ता है। लोग हुक्म सुनना पसंद नहीं करते, वो मुशावरत में शामिल होना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो ये असूल सिर्फ मैनेजमेंट तक ही महदूद नहीं है, यकीनन सेल्स में भी इसकी बड़ी अहमियत होगी। बिलाशुबा। यूजीन वेसन की कहानी इसकी बेहतरीन मिसाल पेश करती है। वो एक टेक्सटाइल डिज़ाइन स्टूडियो के लिए स्केचेस बेचा करते थे, और कई सालों तक वो न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े और मारूफ स्टाइलिस्ट को अपना काम बेचने में नाकाम रहे। कई सालों तक? कितने अरसे तक? 3 साल तक हर हफ्ते मुलाकात करते थे। हर हफ्ते? जी हाँ। वो स्टाइलिस्ट मिलने से कभी इनकार नहीं करता था। वेसन के लाए हुए स्केचेस को गौर से देखता भी था, लेकिन हर बार यही कहता, नहीं वेसन, मुझे नहीं लगता आज बात बनेगी। ओह खुदाया। अंदाजा लगाएं, तकरीबन 150 नाकाम मुलाकातें। 150? और हजारों डॉलर का कमीशन जो जाया हुआ वो अलग। 3 साल, इतनी नाकामियां, ये तो बहुत हिम्मत की बात है। और फिर ये समझना कि मसला शायद हिकमत अमली में है, ये बजाते खुद एक बड़ी दरियाफ्त है। आखिरकार वेसन ने क्या मुख्तलिफ किया, क्या बदला? वेसन को एहसास हुआ कि वो एक ही क्या कहते हैं रट पर अटके हुए हैं। उन्होंने इंसानी रवैये और ताल्लुकात पर असरअंदाज होने के बारे में पढ़ना शुरू किया, और फिर अपनी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर बदल दी। कैसे? उन्होंने कुछ नामुकम्मल स्केचेस लिए और उस स्टाइलिस्ट के पास गए। नामुकम्मल स्केचेस? ये तो और भी अजीब बात है। आमतौर पर तो आप बेहतरीन काम लेकर जाते हैं। हाँ, लेकिन उसके पीछे एक सोच थी, एक हिकमत अमली थी। उन्होंने स्टाइलिस्ट से कहा, मैं आपसे एक छोटी सी मदद चाहता हूँ। यहाँ कुछ नामुकम्मल स्केचेस हैं, क्या आप मेहरबानी करके मुझे बताएंगे कि हम उन्हें इस तरह कैसे मुकम्मल कर सकते हैं कि वो आपके काम आ सके? ओह, यानी बेचने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने मशवरा मांग लिया। एक माहिर से उसकी राय पूछी। बिल्कुल, फेंकने के बजाय उन्होंने खींचने की कोशिश की। स्टाइलिस्ट ने कुछ देर खामोशी से उन अधूरे खाकों को देखा, फिर कहा, वेसन, ये कुछ दिन मेरे पास छोड़ जाओ, फिर आकर मिलना। अच्छा। 3 दिन बाद जब वेसन वापस गए तो स्टाइलिस्ट ने अपनी तजवीज़ दी। वेसन ने वो तजवीज़ें लीं, स्टूडियो वापस जाकर उन खाकों को बिल्कुल स्टाइलिस्ट के ख्यालात के मुताबिक मुकम्मल करवाया। और नतीजा? बिक गए वो स्केचेस। फौरन वो तमाम स्केचेस फौरन मंजूर हो गए, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वाकई? जी हाँ। इसके बाद उसी स्टाइलिस्ट ने वेसन से दर्जनों मजीद स्केचेस खरीदे, और वो सब स्टाइलिस्ट के तजवीज़ और ख्यालात के मुताबिक ही बनाए गए थे। तो यहाँ सिर्फ मशवरा मांगने की बात नहीं थी, है ना? वेसन ने गैर महसूस तरीके से ख्याल की मुल्कियत खरीदार को मुंतकिल कर दी। बिल्कुल। जब हमें लगता है कोई चीज़ हमारी तख्लीक है तो हम उसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। वेसन ने खुद इस कामयाबी का क्या तज्जिया किया था? उन्होंने क्या कहा? वेसन ने बाद में कहा, अब मुझे समझ आया कि मैं सालों तक उन्हें बेचने में क्यों नाकाम रहा था। मैं उन्हें वो खरीदने पर मजबूर कर रहा था जो मेरे ख्याल में उन्हें खरीदना चाहिए। मैंने अपना तरीका बदला। मैंने उनसे कहा कि वो मुझे अपने ख्यालात दें। इससे उन्हें महसूस हुआ कि ये डिज़ाइन वो खुद बना रहे हैं। और हकीकत में वो बना भी रहे थे। हाँ, वो बना भी रहे थे। वेसन ने कहा, मुझे उन्हें बेचना नहीं पड़ा, उन्होंने खुद खरीदा। ये वाकई एक जबरदस्त तब्दीली है। मैं आपको ये बेचना चाहता हूँ से आए मिलकर इसे आपके लिए बेहतरीन बनाएं तक का सफर कमाल है। जी। ये तो कारोबारी दुनिया की बात हुई, लेकिन क्या ये हिकमत अमली घर में ज़ाती ताल्लुकात में भी काम आ सकती है? मुझे पॉल एमव्यूज का वो किस्सा याद आ रहा है जो उन्होंने अपनी क्लास में सुनाया था, छुट्टियों वाला।
हाँ बिल्कुल, वो छुट्टियों का मंसूबा बना रहे थे। वो खुद मशरकी अमेरिका के तारीखी मकामात जैसे गेट्सबर्ग, फिलाडेल्फिया वगैरह देखना चाहते थे, जबकि उनकी अहलिया नैन्सी वो मगरबी रियासतों जैसे न्यू मैक्सिको और एरिज़ोना के कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज होना चाहती थी। जाहिर है दोनों जगह एक साथ जाना तो मुमकिन नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? अपनी ख्वाहिश पर अड़े रहे या अहलिया की मान ली? नहीं, उन्होंने एक ज़्यादा लतीफ़ तरीक़ा अपनाया। उनकी बेटी एन ने हाल ही में अमरीकी तारीख का कोर्स पढ़ा था और उन मौज़ूआत में काफ़ी दिलचस्पी ले रही थी। अच्छा। डेविस ने बस अपनी बेटी से पूछा कि क्या वो अगले छुट्टियों में उन जगहों का दौरा करना पसंद करेगी जिनके बारे में उसने पढ़ा है। बेटी ने फौरन जोशो खरोश से हाँ कह दी। और फिर बस इतना ही 2 शाम बाद खाने की मेज पर उनकी अहलिया नैन्सी ने खुद ही ये तजवीज़ पेश की। क्या? उन्होंने कहा कि अगर सब मुत्तफिक हों तो गर्मियों की छुट्टियां मशरकी रियासतों में गुजारनी चाहिए, क्योंकि ये एन के लिए तालीमी लिहाज से बहुत मुफीद होगा और यकीनन सबके लिए दिलचस्प भी। और सबने फौरन इत्तेफाक कर लिया। कमाल है। यानी डेविस ने बराह रास्त अपनी बात नहीं मनवाई, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाया जहां उनकी अहलिया ने खुद वही तजवीज़ पेश की जो वो चाहते थे, और वो भी एक अच्छी वजह के साथ। ये वाकई महारत है। बिल्कुल, उन्होंने ख्याल का बीज बोया और उसे फलने फूलने का मौका दिया। उन्होंने नैन्सी को ये महसूस होने दिया कि ये उनका अपना ख्याल है, या कम से कम एक मुश्तरका फैसला है जो बेटी के बेहतरीन मफाद में है। इसमें जबरदस्ती नहीं थी, सिर्फ दानिशमंदी थी। लेकिन यहाँ ये नुक्ता अहम है कि ये खुलूस नियत से किया जाए तो बेहतर है ना? जी, ये बहुत अहम है, वरना अगर दूसरा शख्स महसूस कर ले कि उसे किसी तरह मैनिपुलेट किया जा रहा है तो उसका असर उल्टा भी हो सकता है, एतमाद खत्म हो सकता है। सही कहा, ये एक अहम एहतियात है। अच्छा, अब कारोबार की तरफ वापस आते हैं। एक और मिसाल वो एक्सरे मशीन बनाने वाली कंपनी की है जो ब्रुकलिन के एक बड़े अस्पताल को अपना सामान बेचना चाहती थी। जी हाँ, अस्पताल एक नया शोबा कायम कर रहा था और शोबे के इंचार्ज थे डॉक्टर एल। वो मुख्तलिफ कंपनियों के सेल्स नुमाइंदों की मुसलसल आमद और अपनी अपनी मशीनों की तारीफों से सख्त तंग आ चुके थे। हर कोई बस यही कह रहा था कि उनकी प्रोडक्ट सबसे बेहतरीन है। जाहिर है वो मगलूब हो गए होंगे। तो इस सारे शोर में एक कंपनी ने मुख्तलिफ अंदाज कैसे अपनाया? एक ज्यादा समझदार मैन्युफैक्चरर ने डॉक्टर एल को एक खत लिखा। उस खत में उन्होंने ये नहीं लिखा कि हमारी मशीन दुनिया की बेहतरीन मशीन है। तो फिर क्या लिखा? बल्कि उन्होंने लिखा कि उनकी फैक्ट्री ने हाल ही में एक्सरे का नया सामान तैयार किया है और वो जानते हैं कि ये अभी मुकम्मल तौर पर कामिल नहीं है। ओह, ये तो बहुत गैर मामूली बात है। अपनी प्रोडक्ट की कमजोरी का एतराफ करना सेल्स में तो ऐसा कम ही होता है। लेकिन ये ईमानदारी और आजिज़ी का मुजाहरा था। उन्होंने आगे लिखा कि वो इस सामान को बेहतर बनाना चाहते हैं और इस सिलसिले में वो डॉक्टर एल जैसे माहिर की राय और मशवरे के बहुत शुक्रगुजार होंगे। उन्होंने डॉक्टर से दरखास्त की कि अगर वो वक्त निकालकर सामान का मुआयना कर लें और बताएं कि उसे उनके पेशे के लिए मजीद कारआमद कैसे बनाया जा सकता है। और क्या पेशकश की? यहाँ तक कि उन्होंने डॉक्टर की सहूलत के लिए फैक्ट्री आने जाने के लिए अपनी कार भेजने की पेशकश भी की। इस खत का डॉक्टर एल पर क्या असर हुआ, ये जानने में मुझे वाकई दिलचस्पी है। डॉक्टर एल का अपना बयान है, कार्नेगी ने नकल किया है। वो कहते हैं, मुझे वो खत पाकर सख्त हैरत हुई। मैं हैरान भी हुआ और खुश भी। इससे पहले कभी किसी एक्सरे बनाने वाले ने मुझसे मेरा मशवरा नहीं मांगा था। इस खत ने मुझे अहम महसूस कराया। अहमियत का एहसास। जी, वो कहते हैं, मैं इस हफ्ते हर शाम मसरूफ़ था, लेकिन मैंने सामान देखने के लिए रात के खाने की एक मसरूफियत मनसूख कर दी। जितना मैंने उस सामान का मुताला किया, उतना ही मुझे खुद अंदाज़ा होता गया कि मैं उसे कितना पसंद करता हूँ। और फिर उन्होंने सामान खरीद लिया बगैर किसी सेल्स पिच के? बिल्कुल। और डॉक्टर एल के अपने अल्फाज में, किसी ने मुझे ये बेचने की कोशिश नहीं की थी। मुझे लगा कि हॉस्पिटल के लिए ये सामान खरीदने का ख्याल मेरा अपना है। मैंने खुद को इसकी आला खूबियों पर कायल किया और इसे नस्ब करने का हुक्म दे दिया। जबरदस्त। देखिए, मशवरा मांगकर इस कंपनी ने न सिर्फ डॉक्टर को अहम महसूस कराया, बल्कि उन्हें खरीदारी के फैसले की मिल्कियत भी दे दी और फरोख्त खुद ब खुद हो गई। बिल्कुल। ये कहानियां वाकई इस उसूल की ताकत को वाजे करती हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ कोई जदीद नफ्सियाती चाल है या इसकी जड़ें पुरानी हैं, गहरी हैं? ये कोई नया ख्याल हरगिज नहीं। सदियों से दानिश्वर इंसान की इस नफ्सियात को समझते आए हैं।
19वीं सदी के मशहूर अमरीकी मुफक्किर रॉल्फ वाल्डो एमरसन ने अपने मजमून सेल्फ रिलायंस में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी थी। क्या लिखा था उन्होंने? उन्होंने लिखा, ज़हानत के हर काम में हम अपने ही मुस्तरद शुदा ख्यालात को पहचानते हैं, वो एक खास अजनबी शान के साथ हमारे पास वापस आते हैं। वाह, यानी जब कोई और हमारे किसी पुराने शायद भूले हुए ख्याल को अहमियत देता है या उसे पेश करता है तो वो हमें ज्यादा कीमती और दुरुस्त लगने लगता है। जी बिल्कुल, और इससे भी पहले कदीम चीनी फलसफे में भी इसकी झलक मिलती है। 2500 साल पहले अजीम चीनी दानिश्वर लाओ त्सू ने कहा था। लाओ त्सू? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, दरियाओं और समुद्रों को सैकड़ों पहाड़ी नदियों से खराज इसलिए मिलता है कि वो उनके नीचे रहना जानते हैं। इसी तरह वो तमाम नदियों पर हुक्मरानी करते हैं। इसी तरह वो दाना जो लोगों से बुलंद होना चाहता है खुद को उनसे नीचे रखता है, जो उनसे आगे होना चाहता है खुद को उनके पीछे रखता है। गहरी बात है। इस तरह वो कहते हैं, अगरचे उसका मकाम लोगों से ऊपर है, वो उसका बोझ महसूस नहीं करते। अगरचे उसका मकाम इनसे आगे है, वो उसे रुकावट नहीं समझते। ये तो एक बहुत खूबसूरत तशबीह है। यानी क़ियादत करने या असरअंदाज होने के लिए दूसरों को आगे बढ़ने और अहम महसूस होने का मौका देना ज़रूरी है। उन्हें ये एहसास दिलाना कि ख्याल या समत उनकी अपनी है, नीचे रहकर ऊपर हुक्मरानी करना। बिल्कुल, और ये उसूल सिर्फ ज़ाती या कारोबारी सतह पर ही नहीं, बल्कि आप देखें कि आला तरीन सियासी सतह पर भी कितना कारगर साबित हुआ है। कर्नल एडवर्ड एम हाउस का नाम सुना होगा आपने? जी, सदर वुड्रो विल्सन के करीबी मुशीर। बिल्कुल, वो इस टेक्निक के माहिर माने जाते हैं। कहा जाता है कि विल्सन उन पर इतना भरोसा करते थे जितना शायद अपने काबीना के वज़रा पर भी नहीं करते थे। तो कर्नल हाउस ये असर और रसूख कैसे बरकरार रखते थे? उनका क्या राज था? कर्नल हाउस ने खुद इसका राज बताया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जल्द ही ये जान लिया था कि सदर विल्सन को किसी पॉलिसी पर कायल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि ख्याल को निहायत गैर महसूस तरीके से जैसे इत्तेफाकन उनके जहन में डाला जाए, इस तरह के वो खुद उसमें दिलचस्पी लेने लगें और उस पर सोचना शुरू कर दें। अच्छा। उन्होंने एक वाक़या भी सुनाया कि एक बार उन्होंने व्हाइट हाउस में एक तजवीज़ पेश की जिसे सदर ने बज़ाहिर मुस्तरद कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद खाने की मेज़ पर कर्नल हाउस ये सुनकर हैरान रह गए कि सदर विल्सन वही तजवीज़ बिल्कुल अपने अल्फाज में अपने ख्याल के तौर पर पेश कर रहे थे। तो क्या कर्नल हाउस ने उन्हें टोका कि जनाबे सदर, ये तो मेरा ख्याल था? नहीं, अर्गज नहीं। कर्नल हाउस को क्रेडिट लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें नताइज से गरज थी। मकसद क्रेडिट नहीं, काम होना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने विल्सन को ये महसूस करने दिया कि ख्याल उनका अपना है, यहाँ तक कि वो अवामी सतह पर भी उन ख्यालात का क्रेडिट सदर विल्सन को ही देते थे। इसके लिए कमाल दर्जे की महारत और अपनी अना पर काबू रखने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा सबक है। वाकई अक्सर हम क्रेडिट लेने के चक्कर में असल मकसद से ही दूर हो जाते हैं। और ये याद दहानी भी अहम है कि हम जिन लोगों से मिलते हैं वो सब भी इंसान हैं, अपनी ख्वाहिशात, अपनी अना के साथ। तो कर्नल हाउस की तकनीक शायद हम सबके लिए किसी न किसी सतह पर कारआमद हो सकती है। यकीनन हो सकती है। और आखिर में डील कार्नेगी का अपना ज़ाती तजुर्बा भी इस उसूल की तस्दीक करता है। वो एक बार कनाडा के सूबे न्यू ब्रंसविक में छुट्टियां गुजारने, मछली पकड़ने और कीनोइंग करने का मंसूबा बना रहे थे। अच्छा। उन्होंने मालूमात के लिए टूरिस्ट ब्यूरो को लिखा, जिसके जवाब में उन पर खतूत, ब्रोशर्स और मुख्तलिफ कैंप्स की तारीफों का एक सैलाब आ गया होगा, है ना? इंतखाब करना मुश्किल हो गया होगा। हाँ बिल्कुल। वो काफी उलझन का शिकार थे। लेकिन फिर एक कैंप के मालिक ने कुछ मुख्तलिफ किया। उसने सिर्फ अपने कैंप की तारीफें नहीं भेजी। तो क्या भेजा? उसने न्यूयॉर्क में रहने वाले उन चंद लोगों के नाम और फोन नंबर भेजे जो पहले उसके कैंप में ठहर चुके थे, और उनमें से एक को कार्नेगी इत्तेफाक से जानते भी थे। मालिक ने कार्नेगी को दावत दी कि वो इन लोगों को फोन करें और खुद उनसे पूछें कि कैंप कैसा है। ओह, यानी फैसला दूसरों पर छोड़ दिया, मालूमात का एक गैर जानिबदार जरिया फराहम कर दिया। एक तरह से हाँ। कार्नेगी ने वाकई उनमें से एक शख्स को फोन किया, उसका तजर्बा सुना और फिर फौरन उसी कैंप को अपनी आमद की तारीख का टेलीग्राम भेज दिया। और क्यों? कार्नेगी ने खुद क्या वजह बताई? कार्नेगी ने खुद लिखा, बाकी सब मुझे अपनी सर्विस बेचने की कोशिश कर रहे थे। एक ने मुझे मौका दिया कि मैं खुद को कायल करूं, वही जीता। उस कैंप मालिक ने उन्हें फैसला करने की आप कह लें मुल्कियत दी।
زبردست. تو ان تمام مثالوں اور کہانیوں کا نچوڑ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ وہی اصول نمبر 7 ہے، دوسرے شخص کو یہ محسوس ہونے دیں کہ خیال اس کا یا اس کی ہے. ہم نے دیکھا کہ یہ سیلز میں، مینجمنٹ میں، خاندانی معاملات میں اور حتیٰ کہ اعلیٰ سطحی سیاست میں بھی کتنا طاقتور ثابت ہو سکتا ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ کلید یہ ہے کہ اپنی بات منوانے پر زور دینے کے بجائے سوال پوچھیں، مشورہ طلب کریں اور دوسرے شخص کو دریافت کے عمل میں شریک کریں، انہیں ملکیت کا احساس دلائیں. ٹھیک ہے، تو آج کے اس گفتگو کا اگر ہم حتمی جائزہ لیں تو بنیادی پیغام یہی ہے کہ خیالات کو مسلط کرنے کے بجائے انہیں اس طرح پیش کیا جائے کہ دوسرا شخص انہیں اپنی دریافت سمجھیں. یہ صرف ہوشیاری نہیں بلکہ یہ دوسروں کے نقطہ نظر اور ان کی خود مختاری کا رسپیکٹ بھی ہے نا؟ بالکل. اور یہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ روزمرہ کی زندگی میں چاہے دفتر ہو یا گھر، یہ اصول ہمیں بہتر تعلقات بنانے، اختلافات کو کم کرنے اور زیادہ مؤثر طریقے سے تعاون کرنے میں مدد دے سکتا ہے. کیسے؟ دیکھیں، جب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے خیالات کی قدر ہے اور وہ فیصلے کا حصہ ہیں، تو ان کا عزم اور ان کی شمولیت کہیں زیادہ ہوتی ہے. یہ مزاحمت کو کم کرنے اور اتفاق رائے پیدا کرنے کا ایک نفسیاتی طور پر بہت درست طریقہ ہے. اور آخر میں ایک نقطہ میں شامل کرنا چاہوں گی سوچنے کے لیے. کیا اس اصول کو اپنانے کا فائدہ صرف یہ ہے کہ ہم دوسروں پر زیادہ مؤثر طریقے سے اثر انداز ہو سکتے ہیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ شروع سے ہی مختلف نقطۂ نظر کو حقیقی طور پر شامل کر کے انہیں خیال کی ملکیت دے کر ہم مجموعی طور پر بہتر، زیادہ جامع اور قابل عمل خیالات تک پہنچ سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے. یہ صرف اثر و رسوخ کا معاملہ نہیں، شاید یہ بہتر نتائج حاصل کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے. اس پر غور کیجیے گا.